जी क्लास 9th आज हम लोगों ने पढ़ना है केमिकल बॉन्ड्स एंड इट्स टाइप्स. Now chemical bond is the force of attraction that combine two atoms together to form a molecule. And we are having two main types of chemical bonding. जो force of attraction दो atoms में develop होती है वो दो main types की होती है. One is known as ionic bond, the other one is known as the covalent bond. Now, first of all, we have to see the first type of bond, which is called ionic bond. Now, ionic bond is the bond formation between two oppositely charged ions. आप लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ion formation क्या होती है. When an atom gain electron or it loses electron, it becomes a charged species, and that charged species is known as an ion. And when two oppositely charged ions come closer to each other, they develop a strong force of attraction between them, and this is the electrostatic force of attraction, and that is called ionic bond. Now, this is also called electrovalent bond because the electrostatic force of attraction is developed between two oppositely charged ions. Now, first of all, we will recall how the cations and the anions are formed. First of all, we will see how cations are formed. In this uh, regard, we will see the example of, suppose we take the example of sodium, and we see that how it converts into sodium ion, that is the cation, because sodium ion is positively charged ion. आप लोगों को मालूम है कि सोडियम +1 में कन्वर्ट हो जाता है और इस दौरान इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इसके आउटर मोस्ट शेल से. तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जाननी चाहिए, दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, as we all know. Now, if we draw the structure of sodium, यहाँ पे मैं डॉट स्ट्रक्चर बना रही हूँ. सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है. You can see that it has 2 electrons in K shell, 8 electrons in L shell, and there is only 1 electron in M shell. And yesterday we have learned that why chemical bonds are formed. हमने ये पढ़ा था कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. हर एटम जो है वो चाहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में नोबल गैसेस की तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, उनकी तरह इनर्ट हो जाए और फर्दर रिएक्शन ना करे. तो अब यहाँ पर सोडियम के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की. एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और पीछे इसमें जो एल शेल रह जाएगा तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट विल अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, जो कि सोडियम से बिल्कुल पीछे नोबल गैस है. दूसरी ऑप्शन इसके पास ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और 8 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह इसमें कंप्लीट होंगे एंड इट विल अडॉप्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गॉन. अगर आप पीरियोडिक टेबल अपने सामने खोलें तो आप देखेंगे कि आर्गॉन सोडियम के ही पीरियड में, मतलब थर्ड पीरियड का सबसे लास्ट एलिमेंट आर्गॉन है. ठीक है. Now, energetically, it is not possible for sodium to gain 8 electrons and to get the electronic configuration of argon. जो इसके लिए ज़्यादा आसान बात है वो ये है कि it can lose its one electron and it can get the electronic configuration of neon, जो कि इसके ज़्यादा करीब भी है. ठीक है. So what happens? Sodium loses its one electron and it converts into this form. और
हम इसको यूं बनाते हैं कि हम यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं और इसके ऊपर आ जाता है +1 चार्ज, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है और हम उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ यूं भी शो कर सकते हैं. It will lose that one electron and it will get this structure. Now this is not an atom, this is an ion and it contains 11 electrons in it, sorry 11 protons in it and 10 electrons in it. वो जो बैलेंस था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वो खत्म हो गया और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ गया. अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से इसको शो करें तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? वो है 1s2 2s2 2p6 3s1. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. So this is its electronic configuration, and when it will change it into ionic form, अपना इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर देगा तो its electronic configuration will be 1s2 2s2 2p6. ये रह जाएगी. इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया. हम इस इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ पर भी शो कर सकते हैं. It has lost its one electron. Now it become a cation. ठीक है. आपकी बुक में दूसरी एग्जांपल मैग्नीशियम आयन की दी हुई है, वो भी इसी तरह से बनेगा. और आप जब ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ सोडियम आयन इज फॉर्म्ड, तो आपको ये सब करना है. आपको इसका एटम भी बनाना है, उसको आयन में कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर चार्ज शो करना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उसमें जो चेंज आई है वो भी लिखनी है. और आपको ये याद होना चाहिए, आप बेशक इसके नीचे लिखो कि ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्लास आपकी बुक में नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम की, और मैं ये एग्जांपल यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को सोडियम और मैग्नीशियम में ये चीज़ समझ में आ जाए कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इट विल लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मतलब सोडियम में के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था तो उसने वो लूज किया. मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो आई कैन draw them. This is the cation. This is the L shell. And this is the M shell. And you can see that its M shell contains 2 electrons. आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो आप लोगों को जो मैं पहले चैप्टर से याद करवा रही हूँ पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक नंबर, उनका मास नंबर, तो उसका यही रीज़न है. आप जब आपके सामने मैग्नीशियम आए तो आपको ये याद होना चाहिए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12. तो अगर आपको ये याद होगा तो आप ये बना लेंगे, अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप ये नहीं बना सकते क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 नहीं दिया होगा. ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज इट. आप ये याद रखेंगे. अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इट विल ऑब्वियसली लूज दिस बोथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स. आप यहाँ पे लिखोगे -2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर आप चार्ज क्या डालोगे? +2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं. यहाँ पर आपके पास वही एल शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करोगे आप, जबकि आपके पास एम शेल टोटली खत्म हो जाएगा. अब ये सिचुएशन हो गई. अब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और आप इसको बताओगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है. यानी हम ये लिखेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2. ठीक है, and it will be converted into 1s2 2s2 2p6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए. देखें 9th क्लास, जब आप यहाँ एरो
के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं कि ये लूज कर रहा है, तो इसके साथ आप यहाँ पे नेगेटिव जो साइन है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट साइड पर, तो आप +2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि ना सिर्फ ये प्रोडक्ट बनी है बल्कि ये भी एज अ प्रोडक्ट रिमूव हुए हैं। आप इसे यूं लिखोगे, ये आपके पास मैग्नीशियम है और ये आपके पास मैग्नीशियम आयन है। तो ये इसको लिखने का तरीका है, ठीक है। हम इनके बाद सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन की इस एग्जांपल के बाद अब आपके पास ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई थिंक आपके पास ये क्वेश्चंस आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस में भी हैं। जैसे आपका हाँ, ये एग्जांपल ही है, डिस्क्राइबिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस, ठीक है। और उन्होंने पूछा है कि सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन आप कैसे बनाएंगे इनके कैटायंस। तो उन्होंने भी सोल्यूशन में फिगर भी बनाई हुई है आपकी बुक में, और यही वाली फिगर बनी, और साथ में आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे भी बताया हुआ है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे चेंज हो रही है। फिर आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है, दैट इज 4.2। उसमें पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस फॉर द फॉलोइंग मेटल आयंस, वन इज लिथियम एंड द अदर वन इज एल्यूमिनियम। तो ये भी कैटायंस बनाते हैं। आप लिथियम का उन्होंने एटॉमिक नंबर 7 दे दिया है, और उस एटॉमिक नंबर से आपको फौरन ही समझ जाना चाहिए कि एटॉमिक नंबर 3 है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 1 है, तो इट विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Li+1 आयन, यानी लिथियम आयन बनाएगा, लेकिन +1 चार्ज के साथ मोनोवेलेंट आयन बनेगा। यहाँ जो आपने सोडियम आयन की एग्जांपल पढ़ी है वो भी मोनोवेलेंट आयन की एग्जांपल है, मतलब उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। जबकि मैग्नीशियम की एग्जांपल डाईवेलेंट कैटायन की है, बिकॉज इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। डाई का मतलब 2 होता है, डाईवेलेंट का मतलब ये कि इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। फिर ये रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम्स यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये मैंने डॉट स्ट्रक्चर्स यहाँ ड्रॉ किए हैं और यही वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आपने इसके लिए भी यही करना है, ठीक है। You have to write down the electronic configuration, you have to draw the structure, and then you show how the structure changes from the atom to the ion. फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, पहले उन्होंने एग्जाम्पल ही बल्कि दिया 4.3, describing the formation of anions. Let's see that example as well. Now in case of anions, we are having the example of oxygen, and as you all know that oxygen is the member of group 6A. आपको अगर इसका एटॉमिक नंबर याद होगा तो आपको ये याद होगा कि ये ग्रुप 6A का मेंबर है, इसका एटॉमिक नंबर है 8। और अगर ये ग्रुप 6A का मेंबर है तो आपको ये भी समझ आएगी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हमने यही पढ़ा पिछले चैप्टर में कि जो नॉर्मल एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर होता है वही उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि this is the member of group 6A, and group 6A is basically uh, uh, it contains नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स है, और नॉन मेटल्स में क्या टेंडेंसी होती है, नॉन मेटल्स में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, बिकॉज दे आर हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। सो ऑक्सीजन will have the tendency to gain electron, therefore it will convert into anion. Now its atomic number 8, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p4। Now to follow the octet rule, it needs 2 electrons to complete its valence shell, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 2 मजीद इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। पीरियोडिक टेबल सामने रखें तो आपको नजर आएगा कि इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, दैट इज नियॉन। तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करेगा। सो इन डूइंग सो इट विल टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन्स।
अब आप ये देखें कि मैं रिएक्टेंट साइड पर +2 इलेक्ट्रॉन लिख रही हूँ। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई एटम तो हम प्रोडक्ट साइड पर इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं और प्लस के साइन के साथ, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम रिएक्टेंट साइड पर प्लस के साइन के साथ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। और अगर हम एरो पे लिखें, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और हम एरो पर ये लिखें कि -2 इलेक्ट्रॉन या माइनस इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब यही होता है कि वो लूज कर रहा है। सो डोंट कंफ्यूज इन इट। आपकी बुक में मुख्तलिफ तरीकों से ये बात लिखी हुई है, तो अब आपको ये समझना चाहिए कि ये उनका मतलब क्या है। Now it will convert into 1s2, 2s2 and 2p6। तो पहले क्या था, ये ऑक्सीजन, और अब क्या बन गया, ऑक्साइड। -2 चार्ज आ गया इसके ऊपर, ठीक है। और फिर जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प्रोटॉन का नंबर है 8, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो व्हेन इट विल मूव इनटू it will take up 2 electrons, then it will be converted into an anion having 2 electrons greater than the number of protons। प्रोटॉन का नंबर तो अभी भी 8 ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ 2 और 6 थे। So it is converted into its ionic form and anion is formed। This is oxygen and this is oxygen -2 चार्ज के साथ, ठीक है। तो इस तरह से एनाइंस बन जाते हैं। So what will happen, आपके पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो फ्लोरीन की है और फ्लोराइड आयन बन रहा है, तो वो अब आप लोग खुद उसको ड्रॉ कर लें और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे क्वेश्चन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3। Describe the formation of anions by the following non-metals: sulfur atomic number 16 and chlorine atomic number 17। तो ये आप लोग ड्रॉ करें और मुझे गूगल क्लासरूम पर ये सेंड करें इसकी पिक्चर्स। फिर रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ anions by the following non-metals using electron dot structures। तो आपने इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और आपने शो करना है कि किस तरह से ये एनाइंस बनेंगे, ठीक है। फिर है आपके पास डेफिनेशन आ जाती है आयनिक बॉन्ड्स की। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स। Compounds that consist of ions joined by electrostatic forces are called ionic compounds, ठीक है। यानी ये डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। The total positive charge of the cation must be equal to the total negative charge of the anion। अब ये आपने ख्याल रखना है, आपके कोई आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आ जाती है, लाइक आपको के पास क्वेश्चन आ जाए हाउ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, तो आपने ये देखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर रहा है क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन क्लोराइड गेन भी करेगा। बास टाइप में हमारे पास ऐसा हो जाता है बाज एग्जांपल्स में कि लाइक हमारे पास कैटाइन ऐसा है कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स 2 लूज कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो एनाइन है वो सिर्फ एक ही गेन कर रहा है। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें एनाइन का नंबर बढ़ा देना होगा, तो और उसमें फिर हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। मतलब जितना एक एटम आयन बनाते हुए इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरी तरफ उतने ही जो एनाइंस है उनको उतना ही
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गेन करना होगा, बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो आयनिक कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक सब्सटेंस, तो सोडियम क्लोराइड के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। जब आप उसको मेल्ट करते हैं या आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब उसके आयन सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल उसका सोल्यूशन फिर भी न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, और उनके चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। तो वो चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और ओवरऑल आयनिक सब्सटेंस न्यूट्रल होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी सी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आपकी बुक में दो एग्जांपल्स हैं, एक सोडियम क्लोराइड की और एक मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो हम ये दोनों एग्जांपल्स वन बाय वन देखते हैं। 9th क्लास, यहाँ पर मैंने सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन शो की है। आपसे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के जरिए सोडियम क्लोराइड की आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बताएं। मेरे पास चूंकि बोर्ड छोटा है तो मैं उसको एक लाइन में नहीं बता सक रही हूँ। आपकी बुक में ये फिगर एक लाइन में बनी हुई है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही बना लें। नाउ हियर यू कैन सी, अगेन आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आपको सोडियम क्लोराइड बनाने को कहा है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। जब आपको ये याद होगा तो आप तब उनकी ये फिगर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ सोडियम को मैंने डॉट स्ट्रक्चर के साथ शो किया है और क्लोरीन को मैंने क्रॉस के साथ शो किया। ठीक है, इनके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन में और सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स हैं 11। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है नियरेस्ट नोबल गैस की, एंड दैट इज नियॉन। So what will it do? It will lose its one electron. जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, and it will convert into chloride ion because it will tend to get the electronic configuration of the nearest noble gas, और क्लोरीन की नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो आर्गॉन। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और आपके पास सोडियम कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयंस आपके सामने है कि यहाँ पे आपके पास एम शेल खत्म हो गया है और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, और यहाँ पर आपके पास ये 7 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के, तो क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। ये जो डॉट है ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है जो कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आ गया, तो ये क्लोराइड आयन बन गया है। अच्छा, अब ये जो प्लस का साइन इन दोनों के बीच में है, ये रिएक्शन शो कर रहा है सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। याद रखें कि एन आइंस को जब वो बनते हैं तो फिर हम उसे क्लोरीन नहीं कहेंगे, जब एन आइन बन गया तो फिर उसे हम क्लोराइड आइन कहेंगे। ठीक है, ये सोडियम आइन, सोडियम के साथ आपने आइन लगा दिया, लेकिन क्लोरीन जो है फिर आप उसे क्लोरीन आइन नहीं कहोगे, आप उसे क्लोराइड आइन कहोगे। तो इसकी फॉर्मेशन हुई। अब ये जो प्लस साइन है ये वही जो अभी हमने कैटाइंस की फॉर्मेशन में पढ़ा था कि स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आपका प्लस चार्ज का मतलब है कि इस पूरे आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसका मतलब है कि पूरे आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इनके दरमियान आपने कुछ नहीं बनाना और दोनों को करीब करीब बनाना है, जो कि ये शो कर रहा है कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई है, क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। फिर अब आपके सामने ये भी है कि यहाँ पे +1 चार्ज और वहाँ पे -1 चार्ज है। तो बात जो भी हम कर रहे थे कि चार्जेस शुड बी इक्वल, और जितना एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरे को उतना गेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि क्लोराइड सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है और सोडियम ने एक ही लूज किया था, तो ये बैलेंस ही हो गया। मतलब हमें ये जरूरत नहीं पड़ी कि हमें कोई और मतलब अगर एक कैटाइन सपोज 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फिर हमें यहाँ पे 2 क्लोराइड बनाने पड़ते, क्योंकि एक क्लोराइड तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्योंकि उसकी वैलेंसी ही -1 है। तो आप 2 क्लोराइड आइन बनाते तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसमें अकोमोडेट हो जाते, लेकिन यहाँ पे चूंकि सोडियम आइन भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन में भी ये टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आइन बन जाता है, तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो बात मैं अभी आपसे कह रही हूँ
वो हमारी अगली एग्जाम्पल में है। दैट एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप लोग अपनी बुक्स पे जरा देखें तो मैग्नीशियम फ्लोराइड में क्या हुआ। आपने अभी देखा था कुछ टाइम पहले हमने मैग्नीशियम का कैटाइन बनाया था, तो आपने देखा था कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब उसका रिएक्शन हो रहा है फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब एक फ्लोरीन एटम मैग्नीशियम से निकला हुआ एक ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, 2 नहीं कर सकता। तो इसके लिए फिर उसका हल क्या होगा कि इट विल रिएक्ट विद 2 फ्लोरीन एटम्स एट अ टाइम सो दैट इट कैन अकोमोडेट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो अकोमोडेट करेगा तो मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आ जाएगा और फ्लोराइड पर आप दोनों को अलग अलग बनाओगे और दोनों पे -1 चार्ज है। ये आपकी बुक में जैसे बना हुआ है, यहाँ से देखकर आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे। और इसके अलावा भी जितने भी आप आयनिक कंपाउंड्स बनाओगे उसमें आप यही चीज नोटिस करोगे कि आपका जो मेटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जो नॉन मेटल है वो कितने गेन कर रहा है, ठीक है। अब ये वाले जो आपके पास क्वेश्चंस हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की 2 तरह से आ सकते हैं। अब पहली तरह तो हमने ये देखा कि डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर हमने बनाए। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि शो द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि ये हमने यहाँ पे बना के देख लिया। लेकिन उसके अलावा ये क्वेश्चन भी आता है कि आप डिस्क्राइब करें या रिकग्नाइज करें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, और वहाँ पे आपसे डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर नहीं मांगा जाता कि आपने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो in that case you have to write down the full explanation that how ions are formed and how and why ions are formed and how ionic bond is formed, ठीक है। लाइक अगर आपके पास आ जाता है कि how can you recognize that sodium chloride contains ionic bond in it, कैसे recognize करेंगे, तो उसके लिए आपको डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। रिकग्नाइज कैसे करेंगे, तो उसकी आप डिटेल लिखेंगे। यानी सपोज अगर आपके पास सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाए कि यू आर हैविंग सोडियम क्लोराइड, आप उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन लिखें, तो आपको क्या पता कि उसमें आयनिक बॉन्ड ही बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा। तो ये चीज़ बताने के लिए कि आपने सही रिकग्नाइज कर सकते हैं, आपको उसकी पूरी लॉजिक आनी चाहिए। और लॉजिक यही है कि आप लोगों के पास जब एक एटम जो है वो मेटल एटम होता है तो मेटल्स में टेंडेंसी होती है कि दे कम्प्लीटली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा जो रिएक्टिंग एटम है अगर वो नॉन मेटल है तो दैट हैज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, एंड द रीजन इज द सेम अगेन जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। Metal atom will lose electron to get the electronic configuration of the nearest noble gas, and the non-metal will gain electron to attain the electronic configuration of the nearest noble gas. और इस तरह से जब वो आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो दे विल डेवलप स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर बिकॉज दे आर हैविंग ऑपोजिटली चार्ज आइंस। सो इन दिस केस आयोनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड इन देम। तो आपने ये दोनों तरह से इसको करना है, मतलब जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो अभी अपने पास होमवर्क में, तो आप डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी बनाओगे और इसकी कम से कम 4 to 5 लाइन की डिस्क्रिप्शन भी दोगे कि आप कैसे रिकग्नाइज कर रहे हो कि आपके पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। आपके पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है 4.4, उसमें है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एटम्स यूज इलेक्ट्रॉन डॉट एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर्स टू राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये हमने इक्वेशन की फॉर्म ही में सारा किया है, ठीक है। ये इक्वेशन बनाई है लेकिन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर से बनाई है ना। आपको पता है केमिकल इक्वेशन में पॉजिटिव प्लस का साइन यूज करते हो जब दो एटम्स रिएक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ रिएक्शन ही हो रहा है लेकिन आपने स्ट्रक्चर्स बना के वो रिएक्शन करा दिया। तो ये जो आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें आपने यही करना है। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन में आप पहले मैग्नीशियम एटम का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाओ। एक के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो करो, दूसरे में क्रॉस से शो करो, और फिर इस तरह इक्वेशन बनाओ जिसमें शो करो कि कौन सा एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा एटम है जो कि गेन करेगा, ठीक है। सेम इज द केस विद एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एग्जाम्पल 4 पॉइंट, अब मुझे नहीं पता कि क्या लिखा हुआ 4 पॉइंट कौन सी है, 5 है शायद, क्योंकि मेरे पास पिक्चर है और बुक नहीं है तो पिक्चर में क्लियर नहीं आ रहा। Recognizing a compound as having ionic bond, ये जो अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि recognize करने का कहेंगे तो आपने explanation देनी है कि आप क्यों समझते हैं और कैसे समझते हैं कि दो एटम्स जो हैं वो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। ना उसकी एग्जांपल है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड उन्होंने दिए हैं और आपने इन्हें एक्सप्लेन करना है। तो आप जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखी है उस तरह से आपको अगर रिकग्नाइज का क्वेश्चन आएगा तो आपने इस तरह से एक्सप्लेनेशन लिखनी है। जैसे ये है मैग्नीशियम इज मेटल एंड ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, ठीक है। मैग्नीशियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell, so it loses 2 electrons to form magnesium ion. Since oxygen atom has 6 electrons in outermost shell, so it gains 2 electrons to form oxide ion. In this way, both the atoms acquire nearest noble gas configuration. For every magnesium ion, you need one oxide ion. Chemical formula of I don't know क्या लिखा हुआ है of this compound is MgO. Therefore, MgO is an ionic compound. So this is the way to write down the answer to such type of question, that if you are asked how to recognize the ionic bond formation in any particular ionic compound, तो आपने अपनी पूरी explanation लिखकर फिर उसका formula बता देना है कि it will having this formula. जैसे मैं यहाँ पे इसका formula लिखती हूँ NaCl, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही है NaCl के इस फॉर्मूले से कि ये आपके पास सोडियम आयन है +1, क्लोराइड आयन है -1. तो फॉर वन सोडियम आयन, one chloride ion is present. They are having same magnitude of charges but opposite charges. So they will cancel the effect of each other and overall sodium chloride will be neutral. So आप लोग ये चीज बाकियों में भी इसको फाइंड आउट करके देखोगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी हर मैग्नीशियम आयन के लिए एक ऑक्साइड आयन हुआ, क्योंकि दोनों के चार्जेस कैंसिल हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं और कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, तो ओवरऑल मैग्नीशियम ऑक्साइड भी न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूं मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, फ्लोरीन 1 गेन करता है, तो इट मीन्स कि ये बैलेंस नहीं हो रहा है। तो इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है? इसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि हमारे पास फॉर एवरी मैग्नीशियम आयन देयर शुड बी 2 फ्लोराइड आयंस टू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस जो है उन्हें बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 फ्लोराइड आयंस होने चाहिए। 2 फ्लोराइड आयंस मीन कि आपके पास यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई बेशक करके कर लो, क्योंकि 2 आयंस हो गए ना आपके पास, तो एक आयन के ऊपर -1 चार्ज है तो 2 आयंस के ऊपर -2 चार्ज हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.5 भी आप करेंगे और ये सारा कुछ करके सारी असेसमेंट्स और एग्जाम्पल्स आप करेंगे और आप मुझे गूगल क्लासरूम पर सबमिट करेंगे ये सब, ठीक है। टिल संडे यू हैव टू सबमिट ऑल ऑफ देम. Meanwhile, I will try to upload the next lecture of covalent bonds. Okay, take care. Allah Hafiz.